decimal. Okay. Screen visible? Yes. तो कल हमने यहाँ पे रैंडम वेरिएबल्स पे खत्म किया था। तो व्हाट okay. So first I need to clear three concepts. One is vector, one is eigenvalue, and another one is eigenvector. Now, what is this vector? Do you know what is vector? What is vector? Do you know? Let's imagine, let's say you are playing with an arrow. Okay, and the arrow looks like this. Okay, now what are the two things this arrow explaining? One is the length of the arrow, another one thing is the direction of the arrow, right? So when you have two things to explain, let's say a vector always explain two things. One is how far to go and which direction to go. Okay, let's say you think of a 3D place where this is your x, this is your y. Okay, this is your plus y, this is your minus, and this is your minus x, this is your plus x. Okay, now you have an arrow here. Now this arrow is telling you, you need to come this much on x-axis and then you need to go this much on y-axis. Okay, so this arrow is explaining how much to go
Okay, how far to go and which direction to go. So that is called vector. तो मान लो अगर मैं बोल रही हूँ कि प्रतीक आपको राइट साइड में जाना है एंड 5 किलोमीटर जाना है, ये पॉइंट से आपको 5 किलोमीटर राइट में जाना है, तो दैट इज अ वेक्टर वैल्यू. ओके. नाउ another two thing is, one is eigenvalue and eigenvector. Now you imagine, let's say, two examples I already gave you for vector. One is, you can think of that I need to go 5 kilometer on right side or on the right direction, or on the northeast direction I need to go 5 kilometer from this particular point. Now let's imagine, uh, let's say you are riding a bicycle. Okay, and the vector value represent that your speed and in which direction you need to go. Okay, or let's say if we are talking about our eigenvector, this eigenvector is nothing but a special arrow where the direction is constant. When we are not able to change the direction is constant, then we call that eigenvector. ठीक है. मैं एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो यू हैव अ रबर बैंड जो होता है ना, यू हैव समथिंग लाइक दैट. ठीक है. एंड इफ यू वर स्ट्रेचिंग दैट, ठीक है, आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो. ठीक है. तो मान लो इन नॉर्मल कंडीशन द रबर बैंड वाज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. एंड आप उसको स्ट्रेच करके 10 सेंटीमीटर कर दिए. ठीक है. तो व्हाट यू हैव डन, you have made the length twice of its actual length, right? So when we are making it double or we are squeezing it, मान लो उसको स्क्वीज करके तुमने 2.5 सेंटीमीटर कर दिया. ठीक है. या तो फिर उसका जो एक्चुअल लेंथ है विच इज 5 सेंटीमीटर, उसको 15 सेंटीमीटर कर दिया है. तो यू मेड दैट थ्राइस ऑफ इट्स एक्चुअल लेंथ. तो ये जो मैं कभी लॉन्ग कर रही हूँ, कभी इसको श्रिंक करके शॉर्ट कर रही हूँ, दिस इज कॉल्ड आइगन वेक्टर. ओके. सॉरी, आइगन वैल्यू. ओके. So eigenvalue meaning how much the rubber band stretches or shrinks. ठीक है. मान लो my eigenvalue is 2 and 3, meaning जो एक्चुअल लेंथ है उसका ट्वाइस, उसका थ्राइस. ठीक है. Then what is eigenvector? When the direction of the rubber stays same. So eigenvector meaning a special kind of vector where the direction is same. Okay? तो तुम जब स्ट्रेच कर रहे हो या श्रिंक कर रहे हो, you are not changing the direction. The direction is same. That's called eigenvector. मैम एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा. मान लो एक टेबल के ऊपर एक रबर बैंड पड़ा हुआ है. Okay? If your eigenvalue is how much stretching
and how much shrinking you are doing on that particular rubber band. मान लो तुम्हारा आइगन वैल्यू 2 and 3 है, इसके मतलब है जो इसका एक्चुअल लेंथ है इसका ट्वाइस तुम कर सकते हो. इफ यू आर यूजिंग वैल्यू 2, इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्ट्रेच द बैंड ट्वाइस, लाइक जो इसका एक्चुअल लेंथ है उसका ट्वाइस बना देंगे हम. एंड इफ आई एम टेकिंग 3, इट मीन्स आई एम गोइंग टू मेक इट थ्राइस. Okay, thrice of its actual length. An eigenvector meaning it is a special kind of vector where the direction stays same. So I'm not changing the direction. इसको मैं stretch तो कर रही हूँ but I'm not making it like this. इसका डायरेक्शन सेम ही है, सेम डायरेक्शन रख के मैं स्ट्रेच कर रही हूँ. ओके, यू माइट फाइंड दिस लिटिल कंफ्यूजिंग. तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं कि एक मैट्रिक्स, आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है? नो मैम। मैट्रिक्स किसी को मैम 2 स्क्वायर ब्रैकेट रहते हैं उसमें 4 वैल्यू रहती है। तो 4 ही रहेगा. इट्स नॉट लाइक दैट, बट यस, स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका 4 वैल्यू रहता है. ठीक है, तो इट लुक्स लाइक, मान लो तुम्हारा दो इक्वेशन है. एक है 2x plus 3y equal to 7, and then 3x minus 2y equal to 4. ओके, तो अभी इससे हम मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? 2, 3, then the value and value. This is a matrix. ओके, तो मान लो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो एंड 2 कॉलम. ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है एंड उसका हम आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर निकालेंगे. ठीक है, एवरीवन रेडी विथ योर पेन एंड पेपर? यस मैम। Okay, so we have a 2 क्रॉस 2 matrix. Okay, this is the matrix. Now, first we will find eigenvalue. Step number 1, first we need to find out characteristics equation. Okay, okay. Now what is this characteristics equation? We have two equations on this.
One is determinant of A minus lambda of I equal to 0. This is one equation. Another one equation is lambda square minus S1 lambda plus S2 equal to 0. Now both will give us same answer. So first we'll find out the answer of this and then we'll get this one. And we'll check that whether both are giving us same answer or not. So first, what is this A? A is nothing but the matrix we have. The name of the matrix we have given A. Okay. So my A equal to 5, 1, 4. Okay. Now A minus lambda I. So this is A minus, this is my A minus lambda and I index, I matrix looks like this. Diagonally we have 1 and rest are 0. This is I matrix. Okay. So we need to solve this. We need to solve this. And this equal to 0. So A is this one, lambda, I, 0. Okay. Now let's multiply them. First we will get lambda, 1 is a lambda. Lambda into 0, 0. 0, lambda. Okay. Now what we will get from this? Five minus lambda 4, 0, 4 minus 0, 4, 1 minus 0, 1, 2 minus lambda equal to 0. Okay. Excuse me, मैम Hmm. मैम ये सेकंड लाइन में लैम्डा 1001 ये कहाँ से आया? कौन सा 1, 0, 0, 1? ये सेकंड वन, हाँ हाँ, हाँ, ये I के मतलब ये है. I वैल्यू. matrix looks like this. This is I matrix. इतना हो गया सबका.
मैम मेरे को समझ नहीं आया ये लैम्डा वाला, प्लीज रिपीट कीजिएगा। कौन सा समझ में नहीं आया एग्जैक्टली बोलो। ये आई माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इस ये स्क्वायर है, ट्रू है। स्क्वायर है यहाँ पे सेकंड फर्स्ट लाइन में। ये लाइन, अ, यहाँ पे, यहाँ पे हाँ हाँ, कहाँ पे स्क्वायर है? ये वैल्यू कहाँ से आई? ए माइनस लैम्डा लैम्डा, मेरे को लैम्डा नहीं समझ में आ रहा, लैम्डा होता क्या मैम? लैम्डा इज अ वैल्यू and this is the formula. So you don't need to understand what is lambda here. You just need to understand the equation. And there is no square. I hope you were there from the beginning. हम्म, These I have ticked. Whenever I'm talking about that particular thing, I have ticked on that. Lambda is a value like x, y. So you take it as a equation. क्योंकि उतना डीप हमें तो नहीं जाना है. ओके मैम। हेलो मैम, थोड़ा थर्ड वाली स्टेप बताओ मैम। ये वाला मैम थर्ड वाला, उसके नीचे वाला। यही तो थर्ड है ना? नहीं तो ये कौन सा? यस मैम, वही वाला नीचे वाला सबसे लास्ट। ये वाला. ये सिंपल है. इसके साथ ये माइनस की है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये. 5 के साथ लैम्डा माइनस की है, 4 के साथ 0 माइनस की है, 1 के साथ 0 माइनस की है, 2 के साथ लैम्डा माइनस. मतलब ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी, डी के साथ डी. जिसका जो पोजीशन है उसके साथ वो ही माइनस की. हो गया सबका? अभी देखो इससे हमें वैल्यू कैसे मिलेगा. देखो ये जो हम सीख रहे हैं ना कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दैट इससे ज्यादा या कम तुम्हें समझना ही नहीं है, क्योंकि दीज आर मैथमेटिकल थिंग्स. So if I sit and if I start teaching you about lambda, if I start teaching you ये कैलकुलेशन कहाँ से आया, तो ये तो पूरा मैथ्स का ही सेशन हो जाएगा एंड वी नीड टू लर्न फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? तो उतना हमें समझना नहीं है. जितना एमएल के लिए जरूरी है उतना ही सीख लो बस. हो गया? अभी देखो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट. अभी ये जो दो दाग है ना इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वैल्यू 5 माइनस लैम्डा 4 1 2 माइनस लैम्डा ये तो. अभी इससे आंसर कैसे मिलेगा मुझे? डिटर्मिनेंट से अगर मैं नॉर्मल कर लूं तो इट लुक्स लाइक दिस. लेट्स से डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी डी. ओके, तो इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे? डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी. ओके, ए इंटू डी एंड सी इंटू बी एंड दोनों का माइनस. तो यहाँ पे भी हम सेम करेंगे.
5 minus lambda into 2 minus lambda minus 1 into 4 equal to 0. Same, yes or no? यस मैम। तो अभी इससे मुझे क्या मिलेगा? 5 2 ज़ा 10 minus 5 lambda. Next minus 2 lambda minus minus plus lambda into lambda, lambda square minus 4 1 ज़ा 4. ओके, आपको पता है ना ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है? वो ही किया मैंने। 5 के साथ 2, देन 5 के साथ लैम्डा, फिर इसके साथ 2 एंड इसके साथ लैम्डा, वही किया है मैंने। देखो 5 2 ज़ा 10, 5 into minus lambda is minus 5 lambda, then minus plus minus 2 into lambda 2 lambda, then minus minus plus, then lambda into lambda, lambda square, then minus, then 4 1s are 4 equal to 0. Any confusion? No, ma'am. तो अभी ये कैलकुलेट करके बताओ क्या मिलेगा इससे? नॉर्मल 10 plus minus 7x plus lambda square minus 4. 10 minus 7, X, lambda. फिर 7 lambda plus lambda square minus 4. ओके, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा? Six minus 7 lambda plus lambda square. Lambda square minus 7 lambda plus 6. ओके, अभी इससे मुझे ये मिल गया, ये इक्वेशन से। अभी सेकेंड वाला करते हैं। अभी ये वाला करते हैं। क्या है? लैम्डा स्क्वायर माइनस एस 1 लैम्डा प्लस एस 2 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस एस 1 लैम्डा प्लस एस 2 इक्वल टू 0। अभी ये एस 1 एंड एस 2 क्या है? Minus What is 7 and it? 6. Sorry? S1 meaning sum of the diagonal okay, sum of the diagonal value is called S1. And what is S2? S2 is determinant of A. Okay, S1 is sum of the diagonal value and S2 is determinant of A. तो अभी S1 क्या है, S2 क्या है, वैल्यू निकालते हैं।
S1 is sum of the diagonal value, right? So what is my sum of the diagonal value? तो diagonal value क्या है? 5 and 2. तो इन दोनों का sum क्या है? 7. तो S1 is 5 plus 2 equal to 7. Okay. Now coming to S2. S2 मतलब determinant of A. तो determinant का फॉर्मूला याद है? A into B minus C into D. तो मेरा A है 5 and D है 2. तो 5 into 2 10. 10 minus 4 into 1 4. So 10 minus 4 equal to 6. Okay. अभी यहाँ पे प्लेस कर दो बस लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा ठीक है। तो ये तो ज्यादा इजी है, यहाँ पे कितना कुछ करना पड़ा, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा। ओके। हेलो मैम, ये S1 और S2 का हाँ, वैल्यू कहाँ से आया? आप कहाँ पे थे? एक्चुअली मैम मेरा ना इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अभी हुआ था, इस वजह से। ओके। तो ये S1 meaning S1 और sum S2 of वैल्यू। S1 is sum of the diagonal value of your matrix and S2 is determinant of your matrix. तो determinant क्या होता है? A into B minus C into D. तो डायगनली उन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो एंड फिर माइनस करो, तो तुम्हारा यहाँ पे दिस इज आवर मैट्रिक्स, इसका सम ऑफ द डायगोनल इज 5 plus 2, तो 7 हुआ। तो S1 हो गया फिर 7 एंड 6, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का सब्ट्रैक्शन। तो 5 into 2 is 10 माइनस 4 into 1 is 4, तो 6 हो गया। तो S1 is 7 and S2 is 6। आया समझ में? ओके मैम। ओके। ठीक मैम। चलो, तो ये हो गया S1 एंड S2। नाउ कमिंग टू, ये तो हमें दोनों का सेम आंसर मिल गया, राइट? नाउ लेट्स जंप इनटू फैक्टराइजेशन। आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन याद है? ओके, छोड़ो। तो अभी नाउ आवर वैल्यू लुक्स लाइक अभी हमारा वैल्यू कैसा है? लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस इक्वल टू 0। दिस इज आवर लाइन। नाउ अभी हमें क्या करना है? ये जो मिडिल टर्म है, ये जो मिडिल का नंबर है, इसको ऐसे ब्रेक करना है ताकि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो मुझे ये 6 मिलेगा, एंड अगर दो वो सेम दो नंबर को प्लस करो तो मुझे 7 मिलेगा। 6 into 1 मैम, 6 into 1। 6 into 1। ओके, हियर यू हैव -7, तो वो भी आपको याद रखना है कि ये 7 को तो हम 6 एंड 1 में सिर्फ सिंपली ब्रेक नहीं कर सकते, राइट? 6 एंड 1 को अगर प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, राइट? तो हमें यहाँ पे -7 चाहिए, तो क्या करें? गुड, 6 and 1 will be the answer, but it will be minus.
तो -1 -7, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 1 and 6, तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी +6, एंड इसको जब प्लस करेंगे तो विल गेट -7। तो चलो इसको लेके चलते हैं फॉर द नेक्स्ट लाइन। तो इफ आई ब्रेक इट, so I will get something like minus lambda minus 6 lambda plus 6 equal to 0 हुआ। अभी क्या करना है, in the next line I'm going to take lambda common। तो अगर मैं lambda को कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा बताओ। फ्रॉम द फर्स्ट टू एलिमेंट अगर मैं लैम्डा कॉमन ले लूं तो क्या रहेगा। 1 minus 6. लैम्डा -1। ये lambda लैम्डा minus 1. -1, फिर माइनस क्या कॉमन जाएगा इनमें से, 6 कॉमन जाएगा मैम, 6 फिर क्या रह जाएगा। और लैम्डा +1, lambda लैम्डा -1। हम्म तो अभी मेरे पास दो चीज है, क्या क्या, एक है लैम्डा -1 और एक है लैम्डा -6। ओके, तो लैम्डा का वैल्यू हुआ 1 and 6, and this is your अरे आइगन वैल्यू। तो अभी ये नोट डाउन कर लो, देन विल लर्न आइगन वेक्टर। I'm going to next page, okay?
Okay. Now coming to eigenvector. Now the value we received, क्या क्या value मिला मुझे? एक मिला 1, another one is 6. Now let's consider 6 as your value for lambda. Okay? तो अभी for eigenvector, अभी समझ में आ गया थोड़ा बहुत कि लैम्डा क्या है. लैम्डा इज नथिंग बट द वैल्यू यू ट्राइंग टू फाइंड, राइट? तो वो दैट इज योर आइगन वैल्यू. तो अभी आइगन वैल्यू में मुझे दो वैल्यू मिला है फॉर लैम्डा, वन इज 1, वन इज 6. नाउ आप 1 लेके भी आइगन वेक्टर निकाल सकते हो, या तो फिर यू कैन कंसीडर 6. आप 1 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो. यू कैन ट्राई बोथ. आप दोनों का ही अलग अलग से निकाल सकते हो. आई एम शोइंग यू फॉर 1. दूसरा वाला तुम खुद कर लेना, ठीक है? तो 1 is eigenvector and here I am considering lambda equal to 6. Okay. Now what is the formula for that? A is your matrix name minus lambda I matrix. X equal to 0. Okay. Now x and y is my unknown values. ठीक है? तो अभी a का वैल्यू क्या है? याद है ना? a माइनस लैम्डा आई क्या, like we calculated this, right? a minus lambda I, याद है क्या था? बता सकते हो? a minus lambda I हमने कैलकुलेट की थी ना? ये हमने पहले कैलकुलेट किया है ना? क्या होगा इसका आंसर? हमने कैलकुलेट किया है ना ये पहले? किसी को याद नहीं? मैम 5 माइनस लैम्डा, ओके. उसके बाद मैम स्पेस 4 5 माइनस लैम्डा के जस्ट नीचे 1 एंड 4 के नीचे 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0. वेरी गुड. तो ये हो गया मेरा. नाउ just because we are making this matrix, we are going to calculate x and y. Okay, these are our unknown values. Okay, we'll find out the value of x and y. तो अगर तुम्हें एक्स वाई मिल गया तो नाउ यू नो द डायरेक्शन. एरो का डायरेक्शन ही तो हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ना. आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वैल्यू तो हमें मिल गया कि कितना स्ट्रेच करना है. तो वी फाइंड 1 टाइम और 6 टाइम्स. तो अभी कौन सी डायरेक्शन में है? आइगन वेक्टर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम होता है. तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर एक्स एंड वाई. एक्स वाई मिल गया तो नाउ यू नो द डायरेक्शन एज वेल. तो एक्स एंड वाई हम निकालेंगे एंड हियर वी आर कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वल टू 6. अभी लैम्डा के जगह हम 6 को बिठा देते हैं.
Okay. हेलो Now. मैम। हम्म मैम ये एक डाउट था, ये स्टैटिक्स का यूज होगा कैसे वहां पर? ये जो मेडिकल मतलब मैथमेटिक्स इक्वेशन हो गई है यहाँ पर सारी, हम्म तो इसका यूज मैम कैसे होगा स्टैटिक्स का वहां पर? ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, वहां पे हम ये यूज कभी भी नहीं करेंगे। यू जस्ट फिर नीड टू नो द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट जानना है बस। ओ मैम, आप मतलब यहाँ पर अभी ना, जो आपने जो लैम्डा स्क्वायर माइनस का S1 लैम्डा प्लस S2 इक्वल टू 0, ये वैल्यू कहाँ से आया था? समझ में नहीं आया कुछ। आप एक बार रिपीट में देख लेना सेशन। ओके मैम। हम्म वैसे इसका यूज होगा नहीं मैम कहीं पर भी? नहीं, हम यूज तो नहीं करते ये, बट यू नीड टू नो, क्योंकि ये आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, ये टर्म्स बहुत बार आएगा, तो तब आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं है ये सब क्या है। आप मैम ये इसके सब नोट। दे के मॉडल तो नहीं क्रिएट करोगे, कोड लिखने के टाइम भी आप ये यूज नहीं करोगे, बट आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। मैम ये सिस्टम पर भी होगी क्या स्टैटिक्स, या ऐसे ही? नहीं नहीं, नहीं होगा, वही बोल रही हूँ। ओके। ओके मैम। हम्म। तो अभी ये जो हमें मिला है, नाउ वी आर ट्राइंग टू फाइंड द इक्वेशन। ओके, तो x into -1 minus x into 4, so plus 4x equal to 0. This is one equation. Another one, y y minus 4y. अरे